Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. This case scenario is based on base case NPV and adjusted NPV. So before starting this scenario, first let us see what is meant by base case NPV and adjusted NPV. It means first let us discuss topic of this base case and adjusted NPV. So we know that in capital budgeting, so whenever a project is started in zero time period, so investment is made. This is called initial investment. This is also called as initial outflow. When a project is started, so then its life is estimated, which is denoted by n number of years, and then cash inflows are estimated for every year, first year, second year, up to n number of years. So in case of NPV approach, what happens, we calculate present value cash inflow at a discount rate minus our initial investment. But what is the concept of base case NPV? So what is our base case NPV? We also know that initial investment in a project, so it may be funded by equity or it may be funded by debt also. So in case of normal NPV, we take overall cost to capital of a project to determine NPV. But in case of base case NPV, so what is our assumption? So there is a major assumption. So even if there is a debt in our total capital or in total cost of project, so we assume that it is initially financed by 100% equity. It means assumption is initially, so project is financed by 100% equity. So it means if a project is financed by 100% equity, then what will be our required return on project, which is called a discount rate also. This discount rate will be equal to cost of equity only. And what will be cash inflow in this case? CIF. So if we assume there is no debt, now cash inflow will be our earnings before interest and taxes, EBIT, and this is made after tax, and depreciation is added back. So this EBIT after tax is also called as operating profit after tax, which is also called as net operating profit after tax, NOPAT. So in this we add back to depreciation. So this is cash inflow. So now we determine NPV. So this is called our step number 1. It means step 1 is determine or get base case NPV. In short, BCNPV. What is formula of this? This is present value of operating cash flows. So these are operating cash flows. So this is equal to present value of operating cash inflows. And this is at a discount rate is our KE minus initial investment in project. और इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको लेनी है जो टोटल आपने मनी इन्वेस्ट की है. तो इट मीन्स वाई इट इज ऑपरेटिंग बिकॉज इंटरेस्ट इज नॉट कंसीडर्ड इवन इफ डेट इज गिवन. देन सेकंड स्टेप इज नाउ वी इंट्रोड्यूस डेट इन अवर प्रोजेक्ट. So this is first step, first to calculate base case NPV which is 100% equity NPV. Then it is step number second. So in step second, so debt is introduced. तो अब आप देखिए डेट का आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं या क्या क्या आपकी आउटफ्लोस हो सकती हैं. तो जब आप डेट इशू करते हैं डेट उसकी कुछ आपकी फ्लोकेशन कॉस्ट हो सकती है. इसकी इट इज आल्सो कहा गया कि इशू एक्सपेंसेज इशू कॉस्ट और इट इज आल्सो को कहा गया कि फ्लोकेशन कॉस्ट्स ऑफ डेट. तो ये आपका आउटफ्लो माना जाएगा जीरो पीरियड में. फिर आप हर साल इंटरेस्ट पे करते हैं उसके ऊपर आपको टैक्स सेविंग मिलती है. तो डेट विल गेट टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट ऑन डेट. जितना भी आप एक्चुअल इंटरेस्ट पे करेंगे इट मीन दिस इज एक्चुअल इंटरेस्ट. ये आपका इनफ्लो बन जाएगा. एंड समटाइम्स वी गेट सब्सिडी आल्सो इंटरेस्ट सब्सिडी एट अ कंसेशनल रेट. तो वो भी आपका बेनिफिट हो जाएगा. इट मीन्स देन वी हैव टू कंसीडर व्हाट इज इंटरेस्ट सब्सिडी. इंटरेस्ट सब्सिडी नॉर्मली मिलती है जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं बैकवर्ड एरिया में. तो इट मीन दिस इज आल्सो कहा जाएगी कंसेशनल इंटरेस्ट रेट. और जो भी सब्सिडीज होती हैं नॉर्मली टैक्स फ्री होती हैं. इसके ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है. तो इट मीन्स ये जो इंटरेस्ट सब्सिडी है ये भी आपका इनफ्लो बन जाएगा.
तो जो भी डेट से रिलेटेड आपके एक्स्ट्रा इनफ्लो या आउटफ्लो हैं उनको आप एडजस्ट कर लीजिए अपनी बेस केस एनपीवी में। देन वी गेट सेकंड स्टेप एडजस्टेड एनपीवी, गेट एडजस्टेड एनपीवी, इसको हम डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में ANPV। फार्मूला बन जाएगा बेस केस एनपीवी, इसमें से कीजिए आउटफ्लो माइनस इशू कॉस्ट ऑफ गेट if it is given, then you add plus present value of tax shield on interest and plus present value of interest subsidy। अब इस केस में सेकंड पॉइंट आता है कि इनकी प्रेजेंट वैल्यू किस रेट पर कैलकुलेट करते हैं, तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि दीज आर डिटरमिन्ड एट प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ गेट। तो प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ गेट को हम डिनोट करते हैं नॉर्मली के, और समटाइम्स यू कैन आल्सो डिनोट बाय केजी, बट किसी की प्री टैक्स कॉस्ट, क्योंकि हम सिर्फ इसका टैक्स का बेनिफिट कंसीडर कर रहे हैं या इशू एक्सपेंसिव है या इंटरेस्ट सब्सिडी है। तो भाई ये डिफरेंस है अब आपका नॉर्मल एनपीवी से। तो इट मीन्स इसमें आपने पहला स्टेप में कैलकुलेट करनी है बेस केस एनपीवी एज्यूमिंग दैट प्रोजेक्टिव फाइनेंस 100% बाय इक्विटी, इसमें हम इंटरेस्ट को कंसीडर नहीं करेंगे। देन वी इंट्रोड्यूस डेट, देन उसके जो कैश फ्लोस हैं उसको एडजस्ट करेंगे। इशू कॉस्ट आपकी 0 पीरियड में हो रही है, टैक्स सेविंग आपको फ्यूचर में मिलेगी, इंटरेस्ट सब्सिडी भी आपको फ्यूचर में जैसे जैसे आप इंटरेस्ट पे करेंगे तो उसकी आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। सो दिस विल बी अवर एडजस्टेड एनपीवी। So now let us start our case scenario. So data given in this scenario is fast engineering company considering a new project to manufacture steel tubes. Estimated project outlay $56 crores, which will be raised by issuing equity of $32 crores and borrowing a 15% loan of $24 crore from IFCI for 8 years। तो आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, उसकी कॉस्ट हमें दी है और इसमें दो फंड्स हैं आपके इक्विटी एंड डेट, and life is 8 years. Loan will be repaid in 3 equal installments at the end of year 6, 7 and 8. Projected expect to generate an annual after tax operating profit of $5 crores over the 8-year life of the project। तो आपको एनुअल प्रॉफिट आपको दिया है आफ्टर टैक्स, एंड ऑल इक्विटी रिक्वायर्ड रिटर्न इज 18%, टैक्स रेट इज 30%। देन आपके पास है डिफरेंट MCQ एंड टर्मिनल वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट इज 0। तो पहले डेटा ड्रॉ करते हैं। देखो क्वेश्चन में आपको मेंशन किया है प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड इन 0 टाइम पीरियड, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज गिवन, दिस इज डॉलर, टोटल कॉस्ट इज 56 करोड़। तो फिगर्स देखो आपको चल रहे हैं, लाइफ आपको मेंशन किया है 8 ईयर्स, फिगर्स आपके हैं डॉलर्स इन करोर्स। फिर आपको मेंशन किया है इसमें आपकी इक्विटी है, तो दिस इज $32 करोड़ and balance is our 15% debt, जिस कि $24 करोड़ से, टोटल है आपके 56 से। जो डेट है उसको आपने रीपे करना है 3 इंस्टॉलमेंट्स में, रीपेड इन 3 इंस्टॉलमेंट्स एंड दीज आर इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 6th ईयर, 7th ईयर एंड 8th ईयर। सो व्हाट इज अवर इंस्टॉलमेंट, टोटल डेट है देखो आपका 24 डिवाइडेड बाई 3, इट विल बी 8 करोड़ से। यानी कि गिवन तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको दे रखे हैं आफ्टर टैक्स, इट मीन नोपैक इज गिवन, जिस नोपैक इज गिवन है सो जिस 5 करोड़ से इन डॉलर्स, $5 करोड़। फिर आपको मेंशन किए गए हैं ऑल इक्विटी कॉस्ट KE जिस इज 18% एंड टैक्स रेट इज 30%। सो नंबर 1 MCQ दे आस्किंग कैलकुलेट बेस केस NPV ऑफ द इन्वेस्टमेंट टू मैन्युफैक्चर स्टील ट्यूब्स। सो नंबर 1 MCQ, so we have to determine base case NPV. Its formula is present value of operating cash inflows at KE। तो इनिशियली हम एज्यूम करेंगे कोई डेट नहीं है, 100% इक्विटी है, तो उसकी जो रिक्वायर्ड रिटर्न है KE माइनस इधर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब आपको देखो नोपैक दे रखे हैं, तो पहले कैलकुलेट करके हैं व्हाट इज ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, तो इसका फार्मूला बन जाएगा, नोपैक में आपको ऐड करनी पड़ेगी डेप्रिसिएशन तो प्रोजेक्ट पर एनम, तो नोपैक 5 करोड़, डेप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट है आपकी 56, तो इसको आप डिवाइड कीजिए लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट 8, इट इज 7, तो टोटल कैश इनफ्लो इज 12 करोड़। So now we can calculate, so what is base case NPV? So cash inflow is 12 crores into present value factor for NP. Every year it is same.
So K is 18% for 8 years minus investment is 56 crore. So like I say, what is our annuity factor है कि 18% for 8 years. So this one is coming 12 times 4.0776 minus investment is 56. So 12 times 4.0776. So this is coming 48.93 और माइनस कीजिए आप 56. So this is coming negative. So minus our 56 minus 48.93 7.07. तो आपके फिगर्स हैं डॉलर इन करोर्स. दिस इज अवर बेस केस एनपीवी. So let us see which option is correct. So answer is option number C is correct. So next we have MCQ number second. In this case we have to calculate adjusted NPV of the project. So if a company is able to negotiate a loan, so at the rate of 15%. तो लोन आपको मेंशन किया है, तो देखिए आप डेट अरेंज करके हैं, then what will be our adjusted NPV. तो let us see what is formula of adjusted NPV. उस केस में जो डेट आपने इशू किया है उसकी कोई इशू एक्सपेंसिव भी नहीं है, कोई इंटरेस्ट सब्सिडी मेंशन नहीं की. फार्मूला सिंपल है आपका, बेस केस एनपीवी और प्लस कर लीजिए जो आपको टैक्स सेविंग मिलेगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट, और इसको मिलेंगे एट प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट के. तो के आपको देखो मेंशन किया है, प्री टैक्स कॉस्ट होती है जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है लोन का, दिस इज 15%. तो आप देखिए अब आपको मेंशन किया था कि डेट आपने रीपे करना है 3 इंस्टॉलमेंट में स्टार्टिंग फ्रॉम 6th ईयर, 7th ईयर, 8th ईयर. तो उसमें सब इसका एक टेबल ड्रॉ करके हैं कि आपको कितना इंटरेस्ट पे करना है, फिर उसको कितनी टैक्स सेविंग मिलेगी. सो ईयर 6th ईयर को आपका इंटरेस्ट सेम रहेगा. फुल अमाउंट ऑफ लोन जो है 24. सो यू कैन राइट 1 to 6 ईयर बट इज इंटरेस्ट पेड एट द रेट ऑफ 15%. आपके डॉलर्स करोर्स में चल रहे हैं. तो लोन अमाउंट है आपका देखिए 24. तो इट मीन्स ये इंटरेस्ट बनेगा आपका 24 इंटू 15%. तो जैसे 3.6 करोड़. अब 6th ईयर में 24 में से आपने 8 करोड़ की रीपेमेंट कर ली है, बैलेंस लोन रह जाएगा 16 करोड़. तो इट मीन्स 7th ईयर में इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा आपका 16 करोड़ इंटू 15%. तो दिस विल बी 16 इंटू 15%, 2.4 करोड़. 7th ईयर में फिर हम एक इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे 8 करोड़, बैलेंस लोन रह जाएगा आपका 8. तो 8th ईयर में हम इंटरेस्ट पे करेंगे 8 इंटू 15%, 1.2 करोड़. तो ये आपके डिफरेंट इंटरेस्ट हैं. इसके ऊपर आपको टैक्स सेविंग मिल जाएगी 30%. इंटू कर लीजिए आप 30%, देन मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ के विच इज 15%. तो पहले 6th ईयर में आप ले सकते हैं एन्युटी फैक्टर, जो टोटल फैक्टर है 1 डिवाइडेड बाय 1.15 फॉर 6 ईयर. तो दिस टोटल इज कमिंग 3.784. फिर आपको चाहिए सिंगल फैक्टर फ्रॉम 7th ईयर, तो एट 15%, जिसे 0.376 एंड देन इट इज 327. लेगेसी व्हाट इज टोटल प्रेजेंट वैल्यू of a tax saving on interest. So this is our 3.6 into 30% into 3.784. Then it is 2.4 into 30% into 0.376. Then it is 1.2 times 0.3 into 0.327. So total is 4.475. This is positive. Now we can calculate how much is adjusted NPV. तो बेस केस NPV देखो आपकी नेगेटिव थी 7.07 करोड़. तो जिस बार जो माइनस 7.07 एंड प्लस 4.475. दिस इज 7.07 so minus 4.475. So still it is negative. So this is minus 2.595. So this is our adjusted NPV. आपके फिगर्स चल रहे हैं डॉलर्स इन करोड़. यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस केस. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट वी हैव थर्ड MCQ. इन दिस केस वी हैव टू कैलकुलेट द एडजस्टेड NPV ऑफ द कंपनी. इफ कंपनी इज एबल टू नेगोशिएट a loan of $24 crore at a concessional interest rate of 10%
from the government if it agrees to start the project in a backward area and market interest rate is 15% per annum. It means अब इस केस में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है कंसेशनल रेट ऑफ 10%. It means we are getting interest subsidy which is to 5%. So in that case what will be our ANPV? आपका फार्मूला बन जाएगा बेस केस एनपीवी तो प्लस कीजिए अब आप प्राइजिंग वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड तो प्राइजिंग वैल्यू लेंगे टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट जो आपको पे करना है एंड प्लस प्राइजिंग वैल्यू आपको लेनी है इंटरेस्ट सब्सिडी की. इंटरेस्ट सब्सिडी बन जाएगी अब आपकी मार्केट रेट है आपका 15% बट यू आर गेटिंग इंटरेस्ट एट टू कंसेशनल इंटरेस्ट रेट 10% तो 5% आपकी सब्सिडी बन जाएगी और उसकी प्राइजिंग वैल्यू आ जाएगी एट के विच इज 10% विच इज 15% मार्केट रेट जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका. तो इट मीन्स अब एक टेबल ड्रॉ करते हैं. तो ईयर्स आपके 1 to 6 हैं यानी कि ये 7th एंड 8th. तो आप देखिए आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं. इंटरेस्ट पेड उसको आपकी टैक्स सेविंग. नाउ वी विल पे ऑन 24 करोड़ का जो डेट है उस पर आपने इंटरेस्ट पे करना है एक्चुअल में 10%. इट मीन्स 2.4 करोड़. उसके ऊपर आपको मिल जाएगी टैक्स सेविंग 30%. फिर बैलेंस लोन लगेगा आपका 16 करोड़. उसके ऊपर 10% 1.6 देन 0.8. अब बैलेंस रह जाएगा आपका 1 करोड़ उसके ऊपर 10%. तो अब ये इंटरेस्ट आपका आ रहा है एट द रेट ऑफ 10%. उसके ऊपर आपको मिलेगी टैक्स सेविंग एवरी ईयर और प्लस आप कीजिए अब इंटरेस्ट की सब्सिडी. आपकी सब्सिडी बन जाएगी एट द रेट ऑफ 5% जो कंसेशनल रेट है आपका. क्योंकि 5% जो आपका इंटरेस्ट बनेगा ऑन 24 दिस विल बी 1.2 यानी कि 0.8. तो अब 7th ईयर में लोन रह गया था आपका 24 माइनस 8 16 उसके ऊपर 5% यानी कि 0.4. तो लास्ट में रह गया आपका लोन 8 करोड़ इंटू 5%. तो ये आपके टोटल बन जाएंगे. लेट अस सी हाउ मच इज दिस टोटल. देन यू अप्लाई पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 15% विच इज जो मार्केट रेट है जो आपका नॉर्मल डेट का रेट है. तो दिस टोटल इज 2.4 इंटू 0.3 प्लस 1.2 1.92 यानी 1.6 इंटू 0.3 प्लस 0.8 1.28. तो 0.8 इंटू 0.3 प्लस 0.4 0.64. पीवी फैक्टर वी हैव सो 1 डिवाइडेड बाय 1.15 फॉर 6 ईयर का आप ले लीजिए एनुटी जिसे 3.784 यानी कि सिंगल फैक्टर 15% फॉर 7th ईयर 0.376 यानी कि 0.327. Let us see what is the total pricing value of tax saving on interest and interest subsidy. So multiply. So 1.92 into 3.784 and 1.28 times 0.376 0.64 times 0.327. So this one is 7.956. So now we can calculate how much is existing NPV. The base case NPV is negative and this is positive. So 7.956 minus 7.07. So this is dollars 0.886 crore. This is positive. And you can see which option is correct. The answer is option number B. So in this lecture we have discussed a case scenario based on base case NPV and adjusted NPV. फर्दर टॉपिक वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर से. वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.